what made you come back to television, and that too with the game show again? To be really honest, one, perhaps I've not had the time. That's a nicer way to put it. Or I've not had interesting enough offers. I have been one person who, Siddharth knows me, and Puneet Saab and everyone. I like this question-answer formats. I'm not, I think all the programs are very good, which are not question-answers also. But I do that with my children. I do that with my friends all the time. And I find it very interesting. I find it fun if it can be presented in a way that it does not seem like that you're partaking or giving away general knowledge. It just seems you're having fun, getting to know things. And so I always wait for something if that can happen. And on a platform with people where the team is someone, I'm a little spoiled as an actor or as a performer. I like to work with people who are like family and happy and take a little bit of my unprofessionalism. So I waited for that opportunity, and I think it's not a serious-minded quiz show like I have hosted before, which Amitji does now, KBC. It's not just Panchvi Past Ite Hain, which is for children-oriented, which can actually stump you because that one was really difficult, to be really honest. It's a very common platform where everyday things are going to be asked. So it's in the more fun zone and still question-answer. I like those kind of shows. So there are 2 or 3 reasons. One, nothing as interesting has been offered. Second, perhaps I have not had the time span to do it. And third, I did not get a setup like ANTV, Z, and Siddharth again, which I honestly say, I'm not saying it because he's a friend. Genuinely, if you have to do a game show, you have to do it with Siddharth and his team. And when all of that fitted in, and with due respect, I'll again say, and this is wrong, I still don't have the time, but I'm going to take out this time and finish this off. I'll work around the clock because this is really, really exciting. शाहरुख सर, शाहरुख ठीक आपके सामने यहाँ ठीक साहब शाहरुख पुनीत जी ऑल्सो राजेश जी आप तीनों से जानना चाहता हूँ कि आप तीनों में सबसे ज्यादा शाना कौन आप तीनों आपको क्या लगता है? नहीं यही है और कौन हो सकता है? अच्छा ठीक है, पैसे कम ले लेता हूँ यार, क्या थोड़ा सा नेगोशिएट क्या कर लिया, शाना शाना बोल रहे तुम लोग यार। शाहरुख आप एग्री करते हैं कि आप शाने हैं? पुनीत जी ने तो बोल दिया, राजेश जी ने भी बोल दिया, लेकिन आप एग्री करते हैं कि हाँ मैं सबसे ज्यादा? जी मेरे बॉस जो बोलते हैं, बॉस इज ऑलवेज राइट, इन्होंने कह दिया है तो हाँ जी, ये पहला रूल है ANTV और जी के लिए और सिद्धार्थ के लिए काम करना। जी हजूरी बहुत करनी पड़ती है, तो आप शाने हैं, आप खाने हैं, आप लाने हैं, आप पाने हैं, जो बोल दो सर आप। तभी सुन रहा हूँ, बाद में बात करूंगा बाहर जाके इनको। अच्छा शाहरुख, जब घर पे होते हैं आप फैमिली के साथ, गौरी मैडम होती हैं, बच्चे होते हैं, जब कुछ नोक-झोंक होती है तो वहाँ पर सबसे ज्यादा शाना बनकर कौन निकलता है? कुछ आप समझ रहे हैं? आप मैं बिल्कुल नहीं समझ रहा हूँ। नहीं, मेरा मतलब है माँ कसम बिल्कुल नहीं समझ रहा हूँ दोस्त। तो किस तरफ ले जा रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, मुझे पता नहीं है, लेकिन कोई किसी को नहीं समझ आया ना। लेकिन अभी मेरे को ऐसा, जो हमारा सारा जो घर का माहौल है इस वक्त सेंटर्ड अराउंड, जो हमारे घर में जैसे ANTV है, हमारा जो नया प्लेटफॉर्म है अब्राम है, सो अब्राम है जो, तो आई थिंक सारा घर का माहौल उसी के अतराफ रहता है। हम लोग सभी वी आर ऑल उसी से आकर्षित रहते हैं, तो उसकी जो छोटी बातें हैं, जो वो करता है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें वही लगती हैं, सबसे शानी चीज़ें भी वही लगती हैं। और छोटा है तो पहला वर्ड भी बोलता है, पापा बोलता है, कुछ भी बोलता है, तो शाहरुख भी बोलता है वो चाकू, तो उसकी हर बात शानी लगती है, अच्छी लगती है। सो आई थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम इन अ हाउस एवरीथिंग इज सेंटर्ड अराउंड अब्राम, द होल फैमिली। सो आई थिंक आई डोंट नो वो शाना है कि नहीं है, बट स्वीट बहुत है। थैंक यू। शाहरुख सर है आपके लिए अमन अगेन। शाहरुख सर आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के तो किंग हैं ही, टीवी इंडस्ट्री के भी किंग बनना चाहेंगे कोई GEC ला करके? मैं एक दूसरी बात तेरे दोस्त के लिए भी आंसर दूंगा जिनसे पूछा था। जब किसी स्फीयर में आदमी लीडर होता है, और मैं आउटसाइड पॉइंट ऑफ व्यू बोलना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि जी के लिए है या कोई और चैनल के लिए। आई थिंक दिस बिकम्स द जॉब एंड द ड्यूटी ऑफ लीडर्स टू गिव चॉइसेस टू ऑडियंसेस। और जैसा आपने कहा कि ये जी के प्लेटफॉर्म पे ये शो को ला सकते थे, और हो सकता था उस पर भी चलता था, जो प्रोग्रामिंग है इस पे ला सकते थे, बट देन यू कांट हैव दे वांट टू गिव यू 20 hours of a certain kind of entertainment, and then they've gone on to another platform which is ANTV, whether it's edgy, contemporary, different, but they're trying to give you choices at your time.
this medium and entertainment is going to be a little more, not only just interactive, it is all going to be about the convenience with which you can watch what you feel like watching. So I think it is the duty and job of people like Z Entertainment, and they're doing it so well that they're giving you different platforms and choices for entertainment. I think that's the main reason, apart from जो भी market की बातें होती हैं. As far as ये बड़ा अच्छा हुआ कि मैंने ना जो सवाल मुझसे पूछा नहीं गया उसका जवाब दे दिया, जो मुझसे सवाल पूछा गया मैं भूल गया. मैं याद दिला देता हूँ. हाँ. च्यवनप्राश खा के. हाँ, नहीं मैं समझ गया. अब याद आ गया मुझे. मैं भी इतना कम शान नहीं हूँ मैं. Yes, I would love to. मैं बहुत बार जितने भी टीवी इंडस्ट्री में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं, हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं. लेकिन हमारा जो नजरिया है टेलीविजन का, और पुनीत ने मुझे बताया है, सिद्धार्थ ने बताया, हम बहुत बारी बातें करते हैं, हम सब एक ही मीडियम से हैं तकरीबन. हमारा जो नजरिया है कि क्या टेलीविजन के ऊपर चीज है जो सक्सीड करेगी इन टर्म्स ऑफ फिक्शन, इज व्हाट यू मेंशन. आई थिंक I don't think मेरी इतनी उसमें समझ है. So what you need is a synergy or a togetherness of a team from television and team from films, and both kind of give and take, and then they'll be able to create a much more unique program or a unique fiction non-fiction show which would work both ways. क्योंकि finally बहुत expensive business है film making and television making, and spending monies on beaming them down. I think it's very important that people get together. कभी-कभी मैं देखता हूँ कि फिल्म वालों की creativity television पे आ जाती है, फिर सब अरे यार ये क्यों नहीं जम रहा है, क्यों नहीं हो रहा है. There is a certain audience for a certain kind of programming. I think television industry and the film industry, we have to really, really synergize and understand, respect each other. कि we can't look down upon one or the other. And the expenditure, film वाले आते हैं कि हम तो बड़ा महंगा बनाएंगे, क्यों बनाओगे यार? It has to be worked out like that. I think then only it will happen, and soon it will happen. I think it is already happening. I think there are already inroads. You have good thinking people in television and films who like to come, and I genuinely believe, I'm from television myself. And yes, it's ironic कि मैंने television से शुरुआत की है, और television पे अभी तक मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे मैं चमक जाऊं. इंशाल्लाह ये show जो है उतना अच्छा होगा. But I would really like to participate and give back to television what television has given to me, and I think it's important to do it. Mr. Iyer, पुनीत सर. All right, I'm going to request that to be the last question. for me, 3 पूछ लेते हैं. पुनीत सर, या एक सवाल आपसे कि जितने मतलब GCs Mr. हैं Iyer. अभी existing इस दौर में, मौजूदा दौर में जितने, I think अब जा रही है आवाज? हाँ. जी हाँ. जितने मतलब GCs हैं इस वक्त, आगे आने वाले समय में और कितने GCs की गुंजाइश आप पाते हैं, या इतने मतलब सैचुरेशन लेवल आ चुका है टीवी इंडस्ट्री का? देखिए, ये तो समय ही बता सकता है कि कितनी पोटेंशियल बाकी है. पिछले 2 सालों में ही हमने देखा है कि GEC की कंजम्पशन लगभग 15 से 20% बढ़ गई. दिस इज ड्रिवन बाय कि इतने सारे GECs आए हैं मार्केट में. तो इसका पोटेंशियल क्या है ये तो समय ही बता सकता है. आज जो आपका करंट रेटिंग सिस्टम है हमारे देश में, वो सिर्फ 60 मिलियन घर कवर करता है, जबकि हम सब जानते हैं कि टेलीविजन लगभग 160 मिलियन घरों में जाता है. तो जब वो 160 मिलियन घर ट्रैक होने शुरू होंगे, उनकी क्या लाइक्स डिसलाइक्स होंगी, वो क्या सेगमेंटेशन बनेगा GEC स्पेस में, तब जाके मालूम पड़ेगा इसका. तो आई थिंक गिव इट मे बी अ ईयर और 2 जब तक कि नया रेटिंग सिस्टम इस्टेब्लिश होता है हमारे देश में. उसके बाद इसका आंसर बहुत शायद मिल पाए. Hi, Shahrukh. Yeah. All Anand right, here from sorry, sir, Navara. I'll have to intervene there. Do we have more time for one more question? one last question. One last question. Let's take these 2. There's one and one. Let's take last 2-3. Hi, Shahrukh. Anand here from Navara Times. Hi, Anand. शाहरुख, कुछ साल पहले आपका भी ऐसा एक सिंपल क्विज शो आया था, क्या आप 5वीं पास से तेज हैं. वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया था. तो आप इस शो को लेकर कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, और क्या ये लगता है आपको उससे कहीं ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा? जी, हम जितने भी लोग इसमें काम कर रहे हैं, या 5वीं पास भी था, मुझे ऐसा यार मैं ऐसा बोलूं कि बोल सकता हूं मैं कि हाँ टीम बहुत अच्छी है और हम सब लोग मिलजुल कर इसको बहुत सक्सेस बनाएंगे. बट आई थिंक जिस जगह पर मैं हूँ वहां से मैं सक्सेस को नहीं देखता हूँ, मैं खुशी को देखता हूँ कि मैं कितनी बांट सकूं, उसमें कितनी मेहनत कर सकूं, और फिर यही दुआ कर सकता हूँ कि आप लोगों को पसंद आए. एंड आई एम नॉट बीइंग हम्बल और मॉडेस्ट अबाउट दिस. यस, वी वुड लाइक इट टू डू वेल. ये इजरायली फॉर्मेट है जो ले रहे हैं, पहली बार शायद इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दुनिया में इसको दिखाया जा रहा है इंडिया के अंदर. तो नॉवल है ऑफ कोर्स. मैं पूरी कोशिश करूंगा. जो टीम है, जो प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा है. आई थिंक इससे बड़ा प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता है. तो हर चीज है.
अब बस हमारा जैसे बोलते हैं सिक्का बैठ जाए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, सब कुछ है, बहुत अच्छे सेट हैं, बहुत अच्छी रिसर्च टीम है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, लेकिन सब कुछ मिलजुल कर इंशाल्लाह कभी कभी ठीक होता है, कभी नहीं होता है, बट आई थिंक ऑल द इंग्रेडिएंट्स फॉर मेकिंग इट अ सक्सेस, एंड सक्सेस नॉट मेजर्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ द रेटिंग्स एंड स्टफ, सक्सेस इन टर्म्स ऑफ हाउ मच वी विल एंटरटेन पीपल, दैट इज द मेजर ऑफ सक्सेस. सो होपफुली this will be the most successful show I've done in terms of entertaining more people than I've ever done before. Sir. Last question. All right, the last question. Yes, ma'am. You said your content is very contemporary, so will you be competing with Zee TV as well? It's a good question. Yes, the answer to that is yes. It's like this, right? When Serena Williams and Venus Williams play, there is sibling rivalry, right? We will play to win. And when the time comes, we'll also play doubles to beat the other networks. So, yes, that's what we're going to do. Thank you. Thank you, Rajesh. Thank you.